Throughout the Bible, men and women have offered God what is of immense value to them. We want to encourage you that even during these difficult times, do not stop honoring God even with your finances. If you want to send your tithes and your offerings to Capital Christian Center, you have the information on the screen being shown right now. You can either send it through your bank transfer, you can add this bank account information into your beneficiary, or you can directly go ahead and do the transfer on Google Pay. Either ways, your offering or your tithe will be reaching CCC. We want to Throughout the Bible, men and women have offered God what is of immense value to them. We want to encourage you that even during these difficult times, do not stop honoring God even with your finances. If you want to send your tithes and your offerings to Capital Christian Center, you have the information on the screen being shown right now. You can either send it through your bank transfer, you can add this bank account information into your beneficiary, or you can directly go ahead and do the transfer on Google Pay. Either ways, your offering or your tithe will be reaching CCC. It is a wonderful honor and a wonderful time to worship Jesus. Amen. Happy Sunday सभी को शुभ रविवार परमेश्वर का दिन है। हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। हम इतने खुश हैं कि आज हमको एक और मौका मिला आपके साथ सभी के साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। And I want to let you know that God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमको चला रहा है। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में हो परमेश्वर, हम तेरा स्तुति करते हैं, हम तेरी जय जयकार गाते हैं परमेश्वर। स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए।
अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। बन के आए जिंदगी के फिकर, आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है भरोसा तेरा कौन है तेरा भरोसा तेरा गिन स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। क्यों ना हम सब लोग मिलकर गाएंगे। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। एक और बार, अब तूने, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए।
it out, sing a new hallelujah. Sing it out, say. Let us sing love to the nations with the hope of the truth He has freed us. Make Him known and make Him famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Arise, arise. Let the church arise. Let love reach to the other side. Alive, come alive. Let the song arise. Oh, let us sing love to the nations with the hope of the freedom that freed us. Make Him known and make Him famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Look up and say, arise, arise. Let the church arise. Let love reach to the other side. Alive, come alive. Let the song arise. Jesus, we need you to take your love through us, Jesus. Yeah. One more time, say, arise. Let the church arise. Jesus, I lift up my voice, you say, let my love reach to the other side. Alive, come alive. Let the song arise. Jesus, it is our hope, Jesus. परमेश्वर, हमारी आशा है कि हम ऐसे मसीह बन जाए ताकि लोग देख पाए हमें कि हम सच्चे मसीहा हैं परमेश्वर। सिर्फ अपने बातों से ही नहीं, सिर्फ अपने हाथ उठाने से नहीं, मगर जिस तरीके से हम प्यार करते हैं परमेश्वर। For God so loved the world, He gave. उसने अपना प्रेम दिया मेरे को। और मेरा खुदा बोलता है, परमेश्वर मुझसे बोलता है, सबसे बड़ी आज्ञा है खुदा से प्रेम करो। मेरे अपने नजदीकी दोस्तों से प्रेम करो। We want to arise, Jesus. We want to lift up our hands and say, God, we want to lift up and say, we want to send your love to you, Lord. Jesus, that's why we say, I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. आज कितने लोग आज बोल सकते हैं, आपकी आशा, आपकी अभिलाषा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के विश्वास के ऊपर टंगी हुई है। आमीन। मेरा कल के बारे में मेरे को नहीं पता, मेरे परिवार के कल के बारे में मेरे को नहीं पता, मगर मैं तेरे वायदों पे मैं खड़ा हूं। हालेलुया। गॉड, आई एम स्टैंडिंग ऑन योर प्रॉमिसेस, लॉर्ड, बिकॉज़ यू सेड, जीसस, all your promises are yes and amen. Do you believe it, church? Sing with me. All your promises are yes and amen. If you believe it, all your promises
yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are. That's why we say all your promises are yes and amen. All your promises. Let's worship Jesus. Oh, तेरे वायदे मेरे भलाई के हैं, मुझे उजाड़ने के लिए नहीं मगर मेरे को नया बनाने के लिए। तेरे वायदे मेरे जीवन के लिए, तेरे वायदे मेरे परिवार के लिए, तेरे वायदे हाँ है और आमीन है। तू ना छोड़ेगा, तू ना त्यागेगा, तू मेरा मसीहा है। अगर मेरी माँ भी छोड़ दे मुझे, तू कभी ना छोड़ेगा। You are faithful God Jesus. Oh, faithful to the end, faithful Lord, faithful God, faithful Jesus. Can we tell him that you are faithful? Faithful you are. Sing it out, church. Say, faithful forever you will be. Yes, you are, Lord. Faithful you are. So I say, all you promises are yes and amen. One more time, say, all your promises are yes and amen. आप मेरे साथ हाँ और आमीन बोलिए, क्योंकि हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के वायदे के साथ। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने आपको बताया है, जैसे आपने प्रचार में सुना है, वो किसी और के लिए नहीं है, वो आपके लिए है। Every word that has come out of the mouth of God will accomplish everything that it has set forth to do. So say with me, amen. मेरे साथ मिलके बोलिए परमेश्वर आमेन। मैं तेरे वायदों के लिए आमेन बोलता हूँ परमेश्वर, तेरे भविष्य के लिए मैं आमीन बोलता हूँ परमेश्वर। I say yes and amen for everything, the things that I know, the things that I do not know. Amen.
दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबत से आँखी पुतली जैसी संभला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबत से आँखी पुतली जैसी संभला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. So, so kind to me. And so the overwhelming, never-ending, reckless love of God, oh, it chases me
यहोवा ने बनाया है तो मिलकर खुशियाँ मनाए आओ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए आओ। तो आओ मिलकर खुशी के साथ हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के आज सारी चीजों को भूलते हुए हम परमेश्वर तेरी आराधना करेंगे। निराशाओं को आशा का नया दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को आशा का नया दिन। यीशु मसीह है हमारे संग कोई नहीं तेरे बिन। आज के तो आओ मिलकर क्यों ना हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा।
This is your day. Happy birthday, dear Paul. Let's celebrate with you on the day you came to be. Gotta give it all you got. Make your destiny. This is your day. Today. This is your day. This is your day. Happy birthday. This is your day. Happy birthday, dear Paul. Let's celebrate with you on the day you came to be. Gotta give it all you got. Make your destiny. This is your day. Today. This is your day. This is your day. Happy birthday. This is your day. Happy birthday, dear Paul. Let's celebrate with you on the day you came to be. Gotta give it all you got. Make your destiny. This is your day. Today. This is your day. This is your day. Happy birthday. This is your day. Happy birthday, dear Paul. Let's celebrate with you on the day you came to be. Gotta give it all you got. Make your destiny. This is your day. Today. This is your day. This is your day. Happy birthday. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. और आप सबको यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ। So wonderful to speak to the CCC family. और बहुत अच्छी बात है कि हमारे परिवार सीसीसी से बात करना। Within 1 week, I have spoken to so many people in different countries. और पिछले सप्ताह में मैंने मेरे द्वारा कई देशों में प्रचार पहुंचाया गया है। Having lot of committee meetings. और कई ऐसी सभाएं हुई हैं जहां पे समर्पण के बारे में है। And I have to get up in the early morning to do a committee meeting with the people in America. और जो अमेरिका में जो कमिटी मीटिंग है उसको लेकर के कई बातें की गई हैं। सुबह उठना पड़ता है। सुबह उठना पड़ रहा I है। have to wake up early morning. और मुझे सुबह उठना पड़ रहा है। Then sometimes it is late at night. I am speaking to somebody in England. और कई बार तो ऐसा होता है कि इंग्लैंड में मुझे रात को भी बातचीत करना Why पड़ I रहा am है। saying all these things? और मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? But more than all those things, I enjoy talking to you. इन सारी बातों के बावजूद भी मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। Why? क्यों? You are my family. क्योंकि आप मेरे परिवार हैं। I am your spiritual father. और मैं आपका एक आत्मिक पिता हूँ। And there's such a difference between this and the other people. और दूसरे लोगों से बात करना और आप लोगों से बात करने में एक बहुत बड़ा अंतर है। And I'm so pleased that everybody is doing well. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग बहुत अपने आप में ठीक हैं। It's nice to know that everybody is healthy. और ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि आप स्वस्थ हैं। And we keep on praying for you. और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे And I हैं। know that you're all praying for me and Auntie Joyce and family. और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे लिए और बहन जॉयस के लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. आमीन। Because only God is our refuge. क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा एक उद्धार करता है। God is our strength. हमारी सामर्थ वही है। Hallelujah. हालेलुया। Nobody else can protect us. और उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता है। Nobody else can take care of us. कोई उसके अलावा हमारी देखभाल नहीं कर सकता But है। when Jesus is with us, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे साथ है we know that no virus can stand against us. तो कोई भी ये वायरस की बातें हमारे विरुद्ध में खड़ी नहीं हो सकती हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is why we count on Psalm 91. और इसलिए हम लगातार अपने विश्वास को भजन संहिता 91 पे बनाए रखते हैं। And that psalm keeps us safe in God's hands. और ये जो भजन संहिता है हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And
I pray that you and your children, the whole family is doing well. मैं आशा करता हूं कि आपका समस्त परिवार बहुत अच्छा है। Amen. आमीन। And I thank you for being good givers. और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार अच्छा देने वाले बन रहे हैं। Giving is so important in our life. और हमारे जीवन में देना एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। Because giving releases God's power in our life. और देना एक रूप में परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में लेकर के आने का एक तरीका है। Tithes and offerings opens the windows of heaven. और भेंट चढ़ाना और दशवांश देना स्वर्ग के झरोकों को खोल देता है। And the devil cannot stop it. और शैतान उसको रोक नहीं सकता है। God's blessing will continue to flow in our life. और परमेश्वर की आशीष लगातार हमारे जीवन में उमड़ती रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that with me? क्या आप मेरे साथ विश्वास करते हैं? Amen. आमीन। We are a good giving church. हम एक अच्छी कलीसिया है जो देने पे विश्वास रखती है। We are a generous church. और हम एक अच्छे से देने वाले एक कलीसिया है। I always feel so proud of my people. और हमेशा मैं अपने लोगों के ऊपर फक्र करता हूँ। Because I am so happy to be your pastor. क्योंकि मैं आपका एक पासवान होने में अपने आप में फक्र महसूस करता हूँ। And our name has gone all over this city that we are the best giving church in this city. और इस पूरे दिल्ली क्षेत्र में हमारी कलीसिया का नाम इस बात से जाना जाता है कि हम एक अच्छे देने वाली कलीसिया है। We all know हम सब जानते हैं that we are not rich people. हम बहुत अमीर नहीं हैं अपने आप में, But we are rich in our heart. लेकिन हम अपने दिल में बहुत अमीर हैं। We are rich in our giving. हम अपने देने में बहुत अमीर हैं। And God will bless us. और परमेश्वर हमें जरूर आशीष देगा। And I look at every one of your life. और मैं आप सबके जीवन को देखता हूँ। I look at every family. और मैं हर एक परिवार को जब देखता हूँ, I think about the time that you came to the Lord. और मैं उस समय को याद करता हूँ जब आप यीशु मसीह में आए। I remember the time that you became the member of CCC. उस समय को याद करता हूँ जब आप इस कलीसिया के एक भाग बन गए। And at that time, what was your condition? और उस समय आपकी परिस्थिति किस प्रकार से थी? And now, where you are. और आज आप कहां पर खड़े हैं? It's all because of His faithfulness. और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है उसकी विश्वास योग्यता के And वजह से। we prove to God that we love Him. और हम ये साबित करते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। And we do that by our giving. और हम ऐसा सिर्फ देने के द्वारा साबित करते हैं। Finance is a very important part of our heart. और जो आर्थिक बात है वो हमारे दिल की बहुत एक अहम भूमिका है या बातें हैं। Remember, Jesus said, wherever your treasure is, that's where your heart will be. और आपको याद है यीशु मसीह कहते हैं जहां कहीं पे भी आपका धन है वहीं पे आपका दिल लगा हुआ है। Amen. आमीन। Heart and treasure is connected. और जो धन है और हृदय है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। If your treasure is your money, then your heart is connected with your money. और अगर आपका जो धन वो पैसा है तो आपका जो हृदय है वो पैसे से जुड़ा हुआ है। But if your treasure is connected with heaven, और अगर आपका जो धन है वो अगर स्वर्ग के ऊपर है, then your heart will be connected to heaven. तो आपका हृदय भी स्वर्ग की बातों से जुड़ा रहेगा। Amen. आमीन। Jesus said, do not save up the treasures in this world where the moth will eat it. और जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया में ये धन को मत बचाओ क्योंकि यहाँ के कीड़े मकोड़े जो हैं उसको खा करके नाश कर देंगे। The thief will steal it. और जो चोर है चोरी कर लेगा। But store up your treasure above in heaven. लेकिन स्वर्ग में ऊपर में अपने धन को इकट्ठा कीजिए And God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीष देगा। Amen. आमीन। Keep on giving, faithful giving. और लगातार विश्वास योग्यता से देते रहिए। Give according to the Bible. और वचन के आधार पे देते रहिए। Give Him the tithes. Never steal God's money. और दशवांश देते रहिए, परमेश्वर के पैसों में से चोरी मत कीजिए। Amen. आमीन। I'm going to pray a blessing upon your life. और आपके जीवन पे आशीष होने के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। Let us pray together. आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता I परमेश्वर, praise you and I thank you, Lord, for today. मैं आपका नाम ऊंचा उठाता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Lord, for helping us to be good givers. धन्यवाद परमेश्वर, हम ऐसा होने पाया कि हम एक अच्छे देने वाले बन गए हैं।
please bless our tithes and और offerings. हमारी जो दशवांश है, हमारी जो भेंट है, उसे आशीष दीजिए Let it become a blessing for the building of God's kingdom. और होने दीजिए परमेश्वर के इस जो परमेश्वर का ये जो साम्राज्य है उसको बनाने में वो लाभ आ सके। Father God, I pray that you bless everyone. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको आशीषित करें Protect everyone's jobs. और सबके कार्यों की सुरक्षा करें Lord, provide everyone their finance. और परमेश्वर सबकी आर्थिक में उनकी सुरक्षा और उनको प्रदान कीजिए Take care of them, Lord. और सबकी सुरक्षा कीजिए। I bless our church today. और आज मैं अपनी कलीसिया को आशीषित करता हूँ। Lord, be with us as we continue to meditate your word. परमेश्वर हमारे साथ लगातार बने रहिए जैसे हम आपके वचन में से मनन करने वाले In हैं Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to listen to God's word? क्या आप परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार हैं? If you remember last week, अगर याद है आपको पिछले सप्ताह I picked up the life of Caleb और मैंने कालेब के जीवन को उठाया था and I started sharing with you the qualities of this man. और मैं उसके जीवन की जो अच्छे गुण थे उनके ऊपर बातचीत कर रहा था। What about Caleb? और कालेब का जीवन के बारे में क्या है? Caleb was not one of the greatest leaders in the Bible. और बाइबल में कालेब एक बहुत बड़े एक अगुवे के रूप में नहीं जाना जाता है। He was one of the very small leaders among the people of Israel. और इस्राएल के बीच में वो एक छोटे से समूह का एक आदमी के रूप में जाना जाता है। Not many things have been written about this man. और कालेब के बारे में बहुत सी बातें नहीं लिखी गई हैं। Hallelujah. हालेलुया। But he proved to be a man with an amazing character. लेकिन वो अपने आप में ये साबित करता है कि वो एक अच्छा चरित्र रखने वाला है। He proved himself to be one of the closest person with God. और ये वो साबित करता है अपने चरित्र से कि उसका रिश्ता परमेश्वर से बहुत करीबी का है। Hallelujah. हालेलुया। And I hope that you enjoyed the part of his life I preached last week. और मैं आशा करता हूं पहला जो भाग था उसके जीवन का उसमें आपने बहुत सी चीजों को सीखा है, लुत्फ उठाया So है। I will quickly run that and then I'll move forward with his life. और मैं दोबारा से उसी के जीवन को लेकर के कुछ बातें करने वाला हूं और हम आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Caleb's life begins in Numbers chapter 13. और कालेब का जो जीवन है वो 13वें अध्याय गिनती की पुस्तक में शुरू होता When है। Moses was choosing 12 men to spy the land of Canaan. जब मूसा 12 लोगों को ये इस बात के लिए चुनता है कि वो कनान के उस भूमि में जाए और वहां की जांच पड़ताल करे। Amen. आमीन। All the way from the land of Egypt. और ये जो इजिप्ट का जो जगह है तब से लेकर के All the way to the edge of the river Jordan. और ये जो यर्दन की नदी के बिल्कुल किनारे तक You don't hear about Caleb. आप कालेब के बारे में नहीं सुनेंगे। But here is Caleb coming up because Moses chose him as one of the leaders of the tribe of Judah to go to spy the land. और अब जो मूसा है वो कालेब को उसके गोत्र में से चुन लेता है ताकि वो कनान की भूमि में जा करके वहां के बारे में जांच पड़ताल कर सके। We read in Numbers chapter 13 verse 6. और हम 13वें अध्याय और उसकी 6ठी आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं। Amen. आमीन। Numbers, गिनती के बारे। Amen. And Amen. there we read like this, from the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. और हम वहां पे पढ़ते हैं 6ठी आयत में यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब। They went, और वो गए। they brought the report. और वो एक रिपोर्ट को लेकर के आए। 12 of them became 2 groups. और 12 लोगों में से दो भाग में बट गए। 10 men brought bad reports. और जो 10 लोग थे वो गलत रिपोर्ट को लेकर के They आए। said we don't want to go into that land वो ये कहने लगे कि हम उस भूमि पे नहीं जाना चाहते हैं because there are giants in the land. क्योंकि वहां पे बड़े लोग हैं। We are looking like locusts before them. हम उनके सामने टिड्डियों के समान नजर आते हैं।
हैं, They will kill us. वो हमें मार डालेंगे। Let's run back to Egypt. तो वो बोलते हैं कि हम वापस से इजिप्ट में भाग जाएंगे। And it is Caleb और यहाँ पे कालेब है with Joshua. और यहोशू के साथ, He said, no, और वो कहता है नहीं, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, We don't even need to wait anymore. हमें अब प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं है। Let's go and possess the land. और बस चलिए और हम उस जो भूमि है उसको अपना बना लेते हैं। Amen. आमीन। How was that Caleb able to do that? और कालेब और वो बोलते हैं कि कैसे करेंगे। I was talking about his qualities. और हम अभी इस कालेब के अच्छे गुण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। Number one, पहली बात, he was a man of faith. और वो एक अपने आप में विश्वास रखने वाला था, He believed God. वो परमेश्वर पे विश्वास करता था। Who is a man of faith? और कौन है एक विश्वास का आदमी, What is faith? और वो क्या है। I want to give you a definition today. और आज मैं इसके बारे में एक परिभाषा देना चाहता A हूँ। man of faith is a man who is able to see the circumstances through the eyes of God. और विश्वास का आदमी अगर हम देखें तो उसका मतलब ये है कि वो परिस्थितियों को परमेश्वर की आंखों के द्वारा देखने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। How will you look at a giant through the eyes of God? आप कैसे इतने बड़े बड़े बलवंत आदमियों को कैसे परमेश्वर की आंखों के द्वारा देखने पाएंगे। Through the eyes of God, they are nothing. और परमेश्वर की आंखों के द्वारा तो वो कुछ भी नहीं है। But if you are looking through your eyes, लेकिन जब आप अपनी आंखों के द्वारा देखेंगे, they look so big. वो अपने आप में बहुत ही बड़े हैं। Amen. आमीन। Caleb was a man of faith. और कालेब अपने आप में एक विश्वास के नाम से जाने वाला योद्धा था। And number two, दूसरी बात, he was a man faithful to his call. और वो अपनी बुलाहट में विश्वास योग्य रखने वाला आदमी था। Amen. आमीन। God has already promised परमेश्वर ने पहले से उसे विश्वास दिला दिया है, this land is a land flows with milk and honey. और बता दिया है कि ये जो भूमि है वो दाख मधु से और दूध से बहने वाली है। And he said, I'm going to give it to you. और मैं तुझे देने वाला हूँ, परमेश्वर कहता है। I'm going to give it to your generations as an inheritance. और वो ये क्या, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे वंशज को उनका भाग होने के लिए देने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That was a promise. और वो वादा था परमेश्वर का, And he believed that. और उसने इस बात पे विश्वास किया। And he was going to spy the land based on the promise of God. और वो परमेश्वर के वादे के आधार पे उस भूमि की जांच पड़ताल करने के लिए जाते हैं। All the 12 men said the same. और जो 12 लोग थे वो गए, And they said the same thing. उन्होंने भी एक बात, सारी बातें एक समानता में कही। And this is what they said. उन्होंने इस प्रकार कहा, Truly this land is a land flowing with milk and honey. और सचमुच में ये जो जमीन है, ये दूध और शहद से बहने वाली जमीन है। Amen. आमीन। देश. Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And that was, how did they know that God promised them? God told them that. उन्हें कैसा पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे इस बात का वादा किया था। And that very same God told them, और वही परमेश्वर उनसे इस प्रकार भी कहता I है, will give it to you. और मैं तुम्हें दूंगा। If the land is flowing with milk and honey, और अगर ये जो देश है ये दूध और मधु से बहने वाला है, according to the promise of God, और परमेश्वर के वादे के अनुसार, then God will give it to you also that you should believe. और परमेश्वर आपको ये जरूर आपका भाग होने के लिए देगा। आपको विश्वास करने की जरूरत है। Amen. आमीन। That is why Caleb did not worry about the giants. और इसलिए कालेब ने वो बड़े बड़े आदमियों के बारे में चिंता नहीं की, Because he remembered the promises of God. क्योंकि उसने परमेश्वर के वादे को वापस से स्मरण किया। And he knew that God has called us. उसे पता था कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, God is going to take care of us. परमेश्वर उसकी चिंता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So he said, we can do it. और वो कहने लगा कि हम कर सकते हैं। Amen. आमीन। So what happened? तब क्या होता है? The people got so angry. और ये जो लोग थे वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। Amen. आमीन। Not the people who are telling the truth, और वो नहीं जो सत्य को बता रहे थे, but they believe the people who are giving the bad reports. लेकिन वो लोग जो गलत रिपोर्ट को लेकर के आए थे और बता रहे थे, And the people joined with them.
और लोग थे वो उनके साथ जुड़ गए And they wanted to stone Caleb and Joshua. और वो पत्थरवा करना चाहते थे कालेब और यहोशू को। Amen. आमीन। And we come to chapter 14. और तब हम 14वें अध्याय में आते हैं God got very angry. और परमेश्वर बहुत गुस्सा हो जाता है And God said, I want to destroy every one of them. और परमेश्वर कहता है कि मैं इन सब का नाश करना चाहता हूँ। And Moses cried out to God. और तब मूसा रोने लगता है And God heard his prayers. और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता And है God forgave them. और परमेश्वर उनको क्षमा करता But है। God said, लेकिन परमेश्वर कहता है none of these people will enter into the promised और land. ये जो लोगों ने क्रोध किया है ये लोग उस भूमि में नहीं घुस पाएंगे Because they did not believe in me. क्योंकि उन्होंने मेरे वादे पे विश्वास नहीं किया, Because they doubted my promise. क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पे शक किया है। Only Caleb and Joshua will enter into the land. सिर्फ कालेब और यहोशू इस भूमि के अंदर पहुंच पाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And two more things that we learned about Caleb last week. और पिछले सप्ताह हमने दो और बातों को सीखा कालेब के बारे में। And these two qualities of Caleb, God himself was saying. और अब इन दो बातों के बारे में या गुण के बारे में परमेश्वर खुद बता रहा है। Amen. आमीन। And God said in chapter 14 verse 24. और 14वें अध्याय और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर खुद बोलता है। God says, परमेश्वर कहता है my servant Caleb, और मेरा दास कालेब he has a different spirit. उसके पास एक अलग ही आत्मा है And he wholeheartedly follow me. और वो संपूर्ण हृदय से मेरा अनुकरण करता है। Hallelujah. हालेलुया। This is the testimony of God about Caleb. और ये परमेश्वर की साक्षी है कालेब के लिए। Can God give the same testimony about you? क्या परमेश्वर भी आपके बारे में एक ऐसी साक्षी दे सकता है? Imagine that Jesus is coming into our church. और आप सोच लीजिए कि परमेश्वर गनीमत से हमारी कलीसिया में आ गया। I want to talk about the people's lives. और मैं लोगों के जीवन के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। Jesus is saying. और यीशु मसीह कह रहा है। See, I want to testify about और somebody. यीशु मसीह अपने शब्दों में कह रहा है कि मैं इन लोगों की साक्षी देना चाहता हूँ। What will you do? आप क्या करेंगे? Will you stand up and say, yes, Lord, do to give the testimony क्या about आप me? अपने सीने को ठोक करके कह सकते हैं हाँ परमेश्वर आप मेरे बारे में कहिए, मेरे बारे में? Or will you hide behind the person sitting in front of you? और या आप आपके सामने बैठे हुए आदमी के पीछे छुप जाएंगे? Or will you be saying in your heart, no, Lord, please don't leave me, do to somebody else? या आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु यीशु मसीह से नहीं परमेश्वर मेरे बारे में नहीं दूसरे के बारे में बताओ? But here is God saying about Caleb. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर खुद कालेब के बारे में साक्षी दे रहा And है। he said, my servant Caleb follows me with all his और heart. परमेश्वर साक्षी में इस प्रकार कह रहा है कि मेरा दास कालेब वो संपूर्ण हृदय से मेरा अनुकरण करता है। I gave you homework last week. और मैंने आपको पिछले बार गृह कार्य दिया था। In the life of Caleb, और कालेब के जीवन में in the Bible, और वचन में it is written 7 times that Caleb followed the Lord with all his heart. कालेब अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का अनुकरण करता है 7 बार बताया गया है। I want you to find that out. I hope you have. और मैंने कहा था आपको ढूंढने के लिए और आशा करता हूं कि आपने ढूंढा होगा। Amen. आमीन। And you should write down all those references और आपको वो सारे वचन को लिखने की जरूरत है and then send a WhatsApp to Joyce Auntie. और आप उसको कृपया करके जॉयस आंटी के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। Because I don't have WhatsApp. क्योंकि मेरे पास मेरा मतलब अंकल के पास व्हाट्सएप नहीं है। Amen. आमीन। But I will tell you one clue. लेकिन मैं आपको एक सत्य बताने जा रहा हूँ। Now we are going from here to Joshua chapter 14. और अब हम यहाँ से सीधा कूदने वाले हैं यहोशू के पहले अध्याय में। And there 3 times it is written that Caleb followed the Lord with all his heart. वहां पे हम 3 बार पा सकते हैं जहां पे बताया गया है कालेब परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से अनुकरण करता है। So I have done half of your homework. तो मैंने तो आपका आधा काम कर दिया है। Then you find the other 3 places where it is written. तब आपको अब अलग 3 जगहों में कहां पर लिखा गया है ऐसा आपको ढूंढने की जरूरत है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's another quality. Caleb followed the Lord with all his heart. और एक पहला गुण है कि यहोशू जो कालेब था वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का अनुकरण करता था। And number 4, he has a heart. He had a different spirit. और दूसरी बात कि उसके पास एक अलग ही आत्मा थी। I mean, what is the different spirit he had? और क्या अलग प्रकार की आत्मा थी उसके पास? He
was having a different attitude. वो उसकी आत्मा में वो एक अलग ही व्यवहार या एक अलग ही बात रखता था। Like all of us, he was not fighting for a leadership. और आप अपने आप में, हम अपने आप में एक अगुवाई, एक अगुवेपन के लिए लड़ रहे नहीं हैं। He was willing to stand behind Joshua. वो यहोशू के पीछे उसका एक सहायक बन के खड़ा होने के लिए तैयार था। Amen. आमीन। And he said, I'm happy to be a number 2 man. और वो कहता है कि मैं दूसरे नंबर के पायदान पे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And in between this, और इन सब बातों के मध्य में, because of the rebellion of the people, और लोगों के कुड़कुड़ाने की वजह से परमेश्वर के विरुद्ध God sent a plague. और परमेश्वर एक महामारी को भेज देता है उनके बीच में। And God killed many people that day. और उस दिन परमेश्वर कई लोगों को मार गिराता And है। if you read in chapter 14 of Numbers, और अगर आप गिनती के 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, and it says like this, वहां पे इस प्रकार कहा जाता है, all those 10 men who brought bad reports to the people, और वो जो 10 आदमी थे जो मूसा के पास एक गलत रिपोर्ट लेकर के आए थे, they all died in the wilderness. और वो मरुस्थल में मर चुके हैं। Now my question is this. अब मेरा प्रश्न आपके लिए ये है, Don't look at the Bible. Close your Bible. बाइबल को मत खोलिए, बंद कर लीजिए। I'm asking you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। In Numbers chapter 13, और गिनती की किताब 13वां अध्याय, there are 12 names written about the 12 tribes. और 12 गोत्रों के 12 नाम दिए गए हैं। In that, Joshua and Caleb also is there. और वहां पे जो यहोशू और कालेब के बारे में भी बताया And गया I'm है। asking you, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, how many of you remember any one of those 10 names? और आप में से कितने लोग उन 10 आदमियों के नाम को जानते हैं? एक ही नाम. और एक भी नाम बता Even दीजिए। if you can remember one name of all those 10 people. और आप उन 10 नामों में से एक भी नाम बता दीजिए। Don't look at it, बाइबल में मत देखिए, because I want to bring a very important truth. क्योंकि मैं एक सत्य लेकर के आना चाहता I हूं। know you don't remember their मुझे names. पता है कि शायद आपको याद नहीं होगा। Amen. आमीन। You know why? आपको पता है क्यों? Because the people who do not follow God, क्योंकि जो लोग परमेश्वर का अनुकरण नहीं करते हैं, people who do not believe in God's promises, जो परमेश्वर के वादों पे विश्वास नहीं करते हैं, they will not reach the promised land. और वो वादे की भूमि पे नहीं पहुंचेंगे। People who made the heart of the people to be destroyed. और जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों को भड़काया था, What will happen to them? उनके बारे में क्या होगा? The Bible says those 10 men died in the wilderness. वचन कहता है कि वो 10 के 10 उस मरुस्थल में या रेगिस्तान में मर गए हैं। Amen. आमीन। And what do I want to say? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं इसके द्वारा? And nobody will remember their names. उनका नाम कोई भी याद नहीं रखेगा। Hallelujah. Hallelujah. That is why you don't remember their names. क्योंकि इसलिए यही कारण है आप उनका नाम नहीं जानते। You remember Joshua and Caleb, but nobody remembers of those 10 names. आप वो जो यहोशू और कालेब का नाम तो जानते हैं, लेकिन वो 10 का नाम कोई नहीं जानता है। Hallelujah. हालेलुया। They don't deserve to be remembered. उन्हें याद करने की भी जरूरत नहीं, वो इस लायक भी नहीं है। None of us should be like those 10 men. हम में से कोई भी उस 10 नाम या आदमी के बराबर नहीं होना When we चाहिए। are dead and gone, जब हम मर जाएंगे और हम चले जाएंगे, people should remember you. पर लोग हैं आपको याद करना चाहिए। People should talk about you. लोग आपके नाम के बारे में चर्चा करना That will चाहिए। only happen when you are a follower of Jesus ये Christ. तभी हो सकता है जब आप यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे। Now we are going to go forward to the few more things about Caleb. अब हम आगे और कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे, यहोशू के बारे में। Amen. We आमीन। go to Joshua chapter 14. और यहोशू की किताब उसका 14वां अध्याय, And we read verse 6. और हम यहाँ पे 6वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं। And Caleb came to Joshua. और जो कालेब है वो मूसा के पास आता है। No, Joshua के पास आता, मूसा मर गया. हाँ, यहोशू के पास आता है। Amen. आमीन। And Caleb says like this. और कालेब इस प्रकार कहता है, He says in verse 6, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me
in Kadesh Barnea. और यहाँ पे लिखा है, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बारना में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। Amen. आमीन। What did God say? क्या परमेश्वर ने क्या कहा था? Joshua and Caleb will inherit the land. और यहोशू और कालेब जरूर उस भूमि के एक हिस्से होंगे। All the first generation will die in the wilderness. और पहले जो वंशज के लोग हैं वो मर जाएंगे। Amen. आमीन। Now it is a conversation between Joshua and Caleb. और अब ये जो वार्तालाप हो रहा है वो यहोशू और कालेब के बीच में हो रहा है। Caleb is saying like this. कालेब कुछ इस प्रकार कह रहा है, I was 40 years old when we went to spy the land. मैं 40 साल का था अपनी उम्र में जब हम उस भूमि में जांच पड़ताल करने के लिए गए थे। Now I am 85 years old. और अब मैं 85 साल का हो चुका हूँ। Amen. आमीन। I brought the good word back to the people. मैं एक अच्छे शब्दों को उस जांच पड़ताल किए हुए देश से वापस लेके आया हूँ। But my brethren who came with me, they brought bad reports. लेकिन जो मेरे भाई लोग थे वो तो गलत रिपोर्ट लेके आए थे। That's why Moses said, you and your children will inherit the land. इसलिए उस समय में मूसा ने ये वादा किया था कि तू और तेरे वंश के लोग इस भूमि के अधिकारी होंगे। Amen. आमीन। Caleb says, कालेब कहता the है, Lord has kept me in the last 45 years. और वो कहता है कि इन 45 सालों में परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है। Amen. आमीन। When I was 40 years old, we went to spy the land. जब मैं 40 साल का था हम उस भूमि की जांच पड़ताल करने गए थे। Another 45 years. और अभी आगे के जो 45 साल हैं We wandered around the wilderness. हम इस रेगिस्तान में मरुस्थल में इधर उधर घूमते रहे। And he says in verse 10, और वो 10वीं आयत में इस प्रकार कहता है, and today I am 85 years old. और आज मैं 45 वर्ष का हो चुका I हूँ। want to say a couple more things about Caleb and we're going to pray. और मैं प्रार्थना करने वाले हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें और बताने वाला हूँ कालेब के In बारे में। verse 11 he says, और 11वीं आयत में इस प्रकार कहता it's an है, amazing statement. और ये बहुत ही अच्छा कथन है, And yes, as yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. That my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। Amen. आमीन। Caleb is saying, कालेब कुछ इस प्रकार कह रहा है, I was 40 years old at that time. उस समय तो मैं 40 साल का था Now I am 85 years old. और अब मैं 85 साल का हो चुका हूँ। But he said, but my strength is the same. लेकिन जो मेरी जो ताकत है, सामर्थ है, वो 40 साल की ही है। I am strong as this day as I was 45 years ago. और आज भी 40 जो मेरी उम्र है, जितनी मेरी ताकत है ये उतनी है जब मैं 40 वर्ष का था। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And I am saying, no, that is not right. और मैं कहूँगा अरे ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। Look at my life. मेरे जीवन को देखो। What I can do now, what I can do 10 years ago, I can't do now. जो मैं 10 साल पहले कर सकता था अब मैं वो नहीं कर सकता हूँ। My spirit is saying, मेरी आत्मा तो कह रही है you can do it. आप कर सकते हो, But my body is saying, लेकिन मेरा ये जो शरीर है वो कह रहा है, no, you are not strong. वो कह रहा है अपने आप से नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। Your age is showing up. और आपकी जो उम्र है वो दिखने लगी है। Hallelujah. हालेलुया। But Caleb is saying, लेकिन कालेब कुछ इस प्रकार कहता है, I am strong as I was 45 years वो ago. बोलता है मैं आज भी बलवंत हूँ जैसे मैं 40 साल के समय में हुआ करता था। Then I said to the Lord God, this is not right. और वो मैं तब मैं कहूंगा परमेश्वर ये तो बिल्कुल सही नहीं Look है। at Caleb and look at me. और कालेब को देखो और मुझको देखो परमेश्वर। How could you do that to him and not doing that to me? और आप कालेब के लिए ऐसा कर सकते हो और मेरे लिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते Then हो? as I meditated, I had a revelation. लेकिन जैसे मैं इस वचन पे मनन कर रहा था, What? एक परमेश्वर ने प्रकाशन मुझे दिया। What is the strength that Caleb is talking about? उस सामर्थ के बारे में जो कालेब बात कर रहा है वो क्या है? Then I realized something. तब मुझे ध्यान आया एक बात के बारे And I में। remembered
what David was saying in Psalm 27. तब मुझे याद आया भजन संहिता 23 में दाऊद क्या कहता है। And there David says, वहां पे दाऊद कहता है, listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए आप He लोग। says, वो कहता है, the Lord is a light and my salvation. Whom shall I fear? और वो दाऊद कहता है यहोवा मेरा प्रकाश है और मेरा चराने वाला है, And whom shall I fear? और मैं किससे डर सकता And हूँ। now he says, लेकिन अब वो कहता है, listen to me. और बहुत ध्यान से The सुनिए, Lord is the strength of my life. और परमेश्वर वो मेरे जीवन का एक सामर्थ्य देने वाला The है, Lord is the strength of my life. और जो परमेश्वर है वो है मेरे जीवन की सामर्थ्य। Whom shall I be afraid? मुझे किससे डरने की जरूरत है। Now I realize और अब मुझे ये ज्ञात हो गया, the strength that Caleb is talking और about, जो कालेब जिस सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा it है is not his muscles. वो ये उसके मसल के बारे में नहीं है, He's talking about the strength of God. वो परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा The है, Lord is the strength of my और life. परमेश्वर उसके जीवन की सामर्थ्य का रखने वाला है। Let me say that one more time. और एक और बार मैं कहना चाहूंगा, Let me explain it more time. और मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता What does he हूँ mean? उसका मतलब क्या He है। says like this. वो कुछ इस प्रकार कहता When है, I was 40 years old, जब मैं 40 साल का था this God was my strength. परमेश्वर मेरा सामर्थ्य था, And now I'm 85 years old. और अब मैं 85 साल का हूँ, That same God is my strength. और वही परमेश्वर आज भी मेरा सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। What does that mean? उसका मतलब क्या है। It means इसका मतलब है that my God was strength before and the same God is strength with me. और परमेश्वर जो मेरे साथ पहले भी था सामर्थ्य के रूप में, आज भी मेरे साथ सामर्थ्य के रूप में है। Hallelujah. हालेलुया। That means that I am the same with God for the last 45 years. और मैं परमेश्वर के नजरों में पिछले 45 सालों में एक समान हूँ। Amen. आमीन। It means इसका मतलब है my relationship with God, मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ it has not changed. वो बदला नहीं, It is always the same. वो हमेशा एक समान था। What about your life? आपके जीवन के बारे में क्या है। Do you love the Lord the same way now as you did 5 years ago? क्या आप परमेश्वर से आज भी वैसा प्यार करते हैं जैसे आप पिछले 5 सालों में करते थे। Is your relationship with God is the same as when you got saved? क्या आपका आज भी आपका रिश्ता परमेश्वर से बिल्कुल वैसा है जैसे आपका उद्धार हुआ था उस दिन। It's not. If it is not so, we have to repent today. ऐसा नहीं है अगर, तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत We है। have to become like Caleb. हमें कालेब की तरह बनने की जरूरत है। My relationship with God will never change. और मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर से वो बिल्कुल बदलेगा नहीं। Let it be any number of years. और होने दीजिए कि मैं जितने भी साल जी हूँ, I love God with all my heart the same way that I did before. और जैसे मैं परमेश्वर से पहले प्यार करता था, मैं अब भी परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And then he said to Joshua, तब वो यहोशू से कुछ इस प्रकार कहता he है, said, Joshua, यहोशू, I want you to give me the mountain. और वो कहता है कि मुझे उस पर्वत को दे दे। Who is in the mountain? और उस पर्वत पे कौन है? The giants are living in that mountain. और वो भयानक दानव रहा करते थे। Because he said, I told the people 45 years ago, और 45 साल पहले मैंने लोगों से कुछ इस प्रकार कहा था, people, I told them we can defeat them. और मैंने कहा था 40-45 साल पहले कि हम इन लोगों को हरा सकते हैं, But they did not believe me. लेकिन उन्होंने इस बात पे विश्वास नहीं किया। But I believed, therefore I spoke. क्योंकि मैंने तो विश्वास किया था, इसलिए मैंने अपने शब्दों से कहा था। And I was waiting for 45 years. क्योंकि उस बात को पूरा होने के लिए मैं 45 साल तक मैं बाट जो रहा था। Now I wanted to prove my confession was true. और अब मैं मेरी बात को साबित करना चाहता हूं कि मेरा जो विश्वास का कथन था वो सत्य था। Hallelujah. Hallelujah. I want to prove to the people it was not my empty words, it was the statement of faith in my life. और मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो मैंने कहा था वो सिर्फ खाली शब्द नहीं थे, लेकिन वो विश्वास के कहे गए कथन थे। Hallelujah. हालेलुया। Don't look at me as an old man, और दूसरे बूढ़े आदमियों को मत देखो, but look at me as a man of faith. लेकिन मुझे देखो एक विश्वास के आदमी को, Give me the mountain. और मुझे वो पर्वत दे दो। So Joshua looked at him, और यहोशू उसको देखता है, all yours. और यहोशू उसको कहता है ये सब तेरा ही है, You take it. और आप ले लो। So this 85-year-old और man, ये 45 साल का ये जो आदमी है कालेब,
45 नहीं, नहीं, 85. 85 साल का। Amen. आमीन। He came, took his sword and came to that mountain. और वो जो 85 साल का ये जो कालेब है वो उस पर्वत पे जाता है अपनी तलवार को लेकर के। He said, where is the chief of the giants? और वो कहता है कि ये दानवों का सबसे मुख्य आदमी कौन है, अधिकारी कौन है। Ask him to come out. I wanted to fight और him. उसको कहो कि वो बाहर आ जाए और मैं उसके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। Amen. आमीन। And here walks out this giant, strong man. His name was Arba. और अरबा नाम का एक दानव जो अपने शरीर में बलवंत है वो बाहर निकल के आता He है। was the leader of the giants. और वो दानवों का एक अगुवा था। And he looked at him and he said, old man, you're going to fight me. और वो उस आदमी को देख करके कहता है कि क्या तू मेरे से युद्ध करने वाला है। And Caleb said, don't talk, pull your sword, let us fight it और out. कालेब बोलता है अब तू बात मत कर और अपनी तलवार से आजा लड़ाई कर ले। And Caleb pulled the sword. और ये जो कालेब है अपनी तलवार को निकालता है। And he fought with Arba. और वो अरबा से लड़ाई करने लगता है। And God was with Caleb. और परमेश्वर कालेब के साथ था। And he defeated Arba. और उसने अरबा को हरा दिया। And he pierced the sword through the heart of Arba. और उसके अंदर उसके हृदय के अंदर उसने अपनी तलवार को डाल दिया। He fell down dead. और वो नीचे गिर गया एक मुर्दे के समान। Caleb put his feet on the chest of Arba. और कालेब ने उसके छाती पे अपने पांव को रखा। His sword was still dripping with the blood of Arba. और उसकी जो तलवार थी वो अभी भी लहू में डूबी हुई थी। And everybody standing frightened. All the giants were all on their knees crying for life. और ये अरबा के जीवन को सब देखते हुए जो आसपास के दानव लोग थे वो डरे हुए हैं। Amen. आमीन। And Caleb said, और कालेब कहता है what is the name of this place? और इस जगह का नाम क्या है। The people said, तो लोग कहने लग गए this is called Kirjat Arba. और लोग कहने लगे इस जगह का नाम है किरजत अरबा। What does that mean? उसका मतलब क्या है। It means the dwelling place of Arba. और वो कहते हैं ये अरबा के रहने की जगह है। Amen. आमीन। And he looked at the dead man lying there. और हम उसके शरीर को देखते हैं अरबा को कि वो नीचे पड़ा हुआ है। And Caleb said, not anymore. और वो कालेब कहता है कि अब नहीं, We are going to change the name. अब हम नाम बदलने वाले हैं। And he called the name Hebron. और परमेश्वर का जो दास कालेब है उस जगह का नाम हेब्रोन के नाम में बदल देता What is है। the meaning of Hebron? और हेब्रोन का मतलब क्या है। It means the dwelling place of God. और हेब्रोन का मतलब है परमेश्वर का निवास स्थान। That is the story of Caleb. और ये है कालेब की कहानी। God wants you and me to be like Caleb. और परमेश्वर आपको और मुझसे भी यही चाहता है कि हम कालेब बन जाएं। A man was faithful all through his life. और एक आदमी जो अपने जीवन भर विश्वास योग्य बना Who रहा followed the Lord with all his heart. और जो आदमी अपने संपूर्ण दिल से परमेश्वर का अनुकरण करता रहा। God never gave testimony about many people. परमेश्वर ने बहुत से लोगों के बारे में अपने मुंह से कुछ साक्षी नहीं दी है। He gave testimony about Moses. उसने परमेश्वर ने मूसा के बारे में साक्षी दी। He gave testimony about David. और उसने दाऊद के बारे में साक्षी दी। But you don't hear many more people. लेकिन आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सुनते हो। But Caleb was one of them. लेकिन कालेब उनमें से एक था। God wants you to be like Caleb. और परमेश्वर चाहता है कि हम कालेब बन जाएं। Do you want to be like Caleb? क्या आप कालेब की तरह बनना चाहते हैं? If you want to pray to the Lord saying, God, change my life like Caleb. और अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन कालेब की तरह बदल दे। Wherever you're sitting, raise your hands for me, please. और आज आप कहीं पे भी बैठे हैं, जहां कहीं भी बैठे हैं, अपने हाथ को उठाइए मेरे साथ। Lift up your hands and say, Lord, I want to be like Caleb. और अपने हाथ को उठाते हुए प्रार्थना कीजिए, कहिए कि परमेश्वर मैं कालेब की तरह बनना चाहता हूँ। Heavenly Father, हे ईश्वर के पिता we परमेश्वर, praise you and we thank you, Lord, for today. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा Father, उठाते what an हैं। amazing life of a man. और परमेश्वर कितना बढ़िया जीवन है इस आदमी का। Father God, I pray that you will make us like Caleb. और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको कालेब बना देंगे। Let the quality of Caleb will be
revealed in our lives, Lord. होने दीजिए कालेब की अच्छी खूबियां हमारे जीवन में दिखने पाए। I bless everyone in our church. मैं अपनी कलीसिया में सबको आशीष करता हूँ। Meet the needs of everyone, Lord. हमारी जरूरतों की पूर्ति कीजिए। If there is anyone sick in their bodies, heal them. और अगर हम में से कोई भी अपने शरीर में कमजोर है उन्हें चंगा कर दीजिए। Glorify your name. परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you, my dear friends. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय मित्रों। These are all bad times. और ये बहुत ही एक बुरा समय चल रहा है। Be careful. अपना ख्याल रखिए। Take care of yourself. अपने आप का ख्याल रखिए। I love you very much. मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। And I miss you all the time. मैं हमेशा आपको याद करता I'll be हूँ। waiting to see you very, very soon. मैं जल्दी आपको देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। God be with you. परमेश्वर आपको आशीष दे।